Sorry for keep you waiting. Let's start now. So good morning, everyone, and welcome back to PPS Theory Sessions. Currently, we are going through the 6th unit, recursions, and we have started recursion already. We have gone through the basics of recursion. We have seen what is recursion. A function calls itself. It is called a recursive function call, and that process is called recursion. Now, when we go for recursion, we need to be careful of these two things. We must be careful of base case to terminate the recursive function call, and the recursive case, which is actually the task that we repeatedly want to perform. Now, to support this, we had gone for a number of examples also. We have seen the factorial example, Fibonacci, nth term finding example, and then Ackermann function. Well, today we want to go for merge sort process. So we'll cover entire merge sort process in today's lecture. The only one topic we are going to cover, but it is a little bit of a complex process. We need to understand it very carefully. So it's a sorting process. If you do have an array, then and if you want to sort your array in ascending or descending order, right? Then we have seen bubble sort method, we have seen insertion sort method, we have seen selection sort method. This is another one, merge sort method. Now, merge sort method is comparatively better than all those three we have seen earlier, bubble, selection, and insertion. But still, we can say it depends on the input. It depends on the requirement also. Let us see how merge sort works. Why it is better and in what cases it works better, you will learn in upcoming semesters, right? But at present, let us understand how merge sort works. Well, merge sort is actually the divide and conquer technique. It is going to divide your list of numbers, and then it is again going to conquer it. It is going to merge those partitions. So it is called divide and conquer technique, divide and conquer algorithm. So how it works, it actually divides your input into two halves. And then what it does is it calls itself. So here comes the recursion. It calls itself. So it's a recursion for those two halves. जो पार्टीशन आपने किए उन्हीं पार्टीशन पे वो खुद को अगेन कॉल करेगा. सो रिकर्सिव केस हैपेंस हियर. जब तक आप पार्टीशन कर सकते हो उसको डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते जाओ. एंड देन when you are done with the division process, you come back, and at that time you are going to merge those sorted halves. अब वहां पे sorted बोला क्योंकि when we merge we are going to sort it, right? So merge function, the merge process is very much critical part here. Now when we go for merge, हम क्या करेंगे, हम physically उसको divide नहीं कर रहे हैं. So we are going to give it a position. So L is the left position, M is the middle position, R is the right position. So left and right पूरा array आ गया. Middle point is going to say कहाँ से आपने उसको divide किया था, and the original array you are going to pass. So the partitions are on your array, which is starting from left up to right. And where do you create a partition? You are going to create a partition from middle place. So that's how, using these three pointers, we can say that this array has been divided. So one partition is from left to middle, and the other partition is from middle plus one up to right. And those two are sorted, and we are going to merge those two arrays, sub arrays. Now that's how it works. Now actual process we will understand, but this is what the overview of merge sort. So what it says, how it works, it says that you divide your array into two partitions. Now if it is the only element inside your array, then you cannot further divide it, and the single value we can say is already sorted. And if it is that case,
we will simply return. Now this becomes your base case for recursion, and the other two becomes your recursive cases. So in recursive case, what we are going to do is we are going to divide the list recursively into two halves until it can no more be divided. जब तक डिवीजन पॉसिबल है आप रिकर्सिवली उसको डिवाइड करते जाओ. जब एक सिंगल वैल्यू आपके पास रहेगी तो आप उस सिंगल वैल्यू को डिवाइड नहीं कर पाओगे, एंड दैट विल बी योर बेस केस, दैट विल बी द एंड ऑफ द रिकर्जन. So then when you come back, at that time you are going to merge those smaller list. अब सिंगल वैल्यू हर बार सॉर्टेड कहलाएगी. सो आप जब वहां से वापस आओगे तो आपको वो सॉर्टेड लिस्ट मिलेगा, and then you are going to merge those sorted list. So this is what the process of merge sort. Now let us understand this entire process with the example so that it will be more clear to your mind. So let me jump to the other slide and let us understand how merge sort works with this example. Let us assume that we do have this array and we want to sort this array. Okay. So what merge sort says, आपके पास जो भी एरे है आप उस एरे को इटरेटिवली डिवाइड करते जाओगे दो पार्टीशन में. अब दोनों पार्टीशन इक्वल साइज के रहने चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल साइज के. तो आप क्या करोगे, मिडिल वैल्यू से आप उसको डिवाइड करोगे. सो विच वन इज द मिडिल वैल्यू हियर? सो इफ यू कैन सी हियर, then there are total 9 elements and this value 4 is going to be the middle value. Now look, we are not going to forget the middle value. So this is the middle point and you are going to divide your array from this place. I hope you can see my cursor. So 4 is the middle place and you are going to divide your array from this place. अब 4 को आप left side या right side कहीं पे भी consider कर सकते हो depending on your calculation. So when you divide this one, and if we assume that we are going to consider that middle value in the right partition, then this is how you are going to partition that array. So जो आपका original array था आपने उसको दो partition में divide कर दिया. One partition has 7, 2, 9 and 1 values. Other partition is having 4, 3, 8, 6 and 5 values. Okay, हमने उसको दो partition में divide किया. Now further recursively we are going to divide those two partitions. ये दो partition जो हमें मिले हैं हम recursively उनको भी दो partition में divide करने जाएंगे. So if we focus on this one first, 7, 2, 9, 1, तो उसको middle place से आप divide करो. तो left side 7, 2 रहेगा, right side 9, 1. Okay, so we have divided that into further two half. Similarly here 4, 3, 8, 6, 1, 8 जो है वो middle position है, आप वहां से divide करोगे. And as we have decided middle value को हम right side रखेंगे, then this is going to be your partition. Okay, so what you are going to do is you are always going to calculate the middle position, और वो middle position से आप अपने एरे को दो अलग अलग सब एरे में डिवाइड करोगे. एक लेफ्ट पार्टीशन रहेगा, एक राइट पार्टीशन रहेगा. सो फर्दर we will go and divide this 7 and 2 here. So on one side there will be 7, on the other side there will be 2. The same way we are going to divide 9 and 1. So 9 and 1 has been divided into separate partitions. We will divide 4 and 3. So on the one side 4, on the other side 3. We'll divide this 8, 6 and 5. 6 is the middle value and middle value will be on the right partition. So on one side there'll be 8, on the other side there'll be 6 and 5. Now 7 has been divided, is a single value. We cannot further divide 7. And similarly we cannot further divide 2, 9, 1, 4, 3, 8. All these are single values. But still there is one partition possible, 6 and 5.
तो आप 6 5 को भी 2 पार्टीशन में डिवाइड करो, राइट? सो this is where we actually go in the division process. हम अपने ओरिजिनल एरे को हर बार 2 पार्टीशन में रिकर्सिवली डिवाइड करते गए जब तक वो डिवीजन प्रोसेस पॉसिबल था। और व्हेन यू हैव अ सिंगल वैल्यू, आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे। अगर आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, अगर वो एक सिंगल वैल्यू है, तो आप उसको ऑलरेडी सॉर्टेड मान सकते हो। 7 itself is a sorted array alone, okay? 7 alone is a sorted value. 2 alone is a sorted value. So अब आपके पास 7 sorted में है, 2 भी sorted है। ये दोनों sorted सब arrays को अब आप merge करोगे। So we are going to merge 7 and 2. What we'll do is we are going to merge 7 and 2. Now when we merge those two partitions, तो मर्ज करते वक्त हम ये याद रखेंगे कि हमें छोटी वैल्यू पहले लेनी है, बड़ी वैल्यू बाद में लेनी है। सो विल कंसीडर 2 फर्स्ट एंड देन वी आर गोइंग टू कंसीडर 7. फ्रॉम दीज 2 वी विल कंसीडर 2 एंड देन विल कंसीडर 7. अब ये दोनों अलग थे, हमने उनको मर्ज कर दिया। नाउ एट द टाइम ऑफ मर्जिंग प्रोसेस हमने ये कंपेयर किया, हमने दोनों वैल्यू को कंपेयर की और जो वैल्यू छोटी थी उसे पहले किया, कंसिडर किया, बड़ी वैल्यू को बाद में, सो दैट रिजल्टिंग एरे, आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी सॉर्टेड हो। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉर्टेड सब एरे। पहले 7 2 था, उसको हमने 2 7 बना दिया। नाउ सिमिलरली व्हेन वी मर्ज 9 and 1, वी आर गोइंग टू कंसिडर 1 first and then we will consider 9. नाउ रिमेंबर, जिसको आपने डिवाइड किया उसी को आप मर्ज करोगे, ये याद रखना है, ओके? जो पार्टीशन को आप फर्दर डिवाइड करते हो उसी पार्टीशन के अंदर आप मर्ज प्रोसेस करोगे। सो जो जो पाथ आपने फॉलो किया डिवाइड करते वक्त, एग्जैक्टली रिवर्स पाथ आप फॉलो करोगे एट द टाइम ऑफ मर्जिंग प्रोसेस। सो नाउ वी विल, अब 4 और 3 को हमने डिवाइड किया था, तो 4 और 3 को हम मर्ज करेंगे। सो टू मर्ज दीज टू वी आर गोइंग टू कंसीडर 3 फर्स्ट एंड देन 4, ठीक है? नाउ व्हेन यू लुक एट दिस प्लेस, व्हेन यू लुक एट दिस प्लेस, आपने 6 and 5 को पहले डिवाइड मींस लास्ट में डिवाइड किया था, तो आप रिवर्स पाथ में अगर जाते हो देन यू आर गोइंग टू मर्ज 6 and 5 फर्स्ट। 6 5 को पहले मर्ज करो, then you will take 5 and then you will take 6. तो 6 5 जो था वो 5 6 बन गया, sorted array. Now this 5 6 is going to be merged with 8, and in that case आप 5 और 8 को कंपेयर करके पहले 5 लोगे, then 8 and 6 ये दोनों को कंपेयर करके आप 6 पहले लोगे, and then you are going to consider 8 here. Okay, so you have sorted array 5 6 and 8. So you are at this level, आप यहां तक पहुंच गए हो, रिटर्न प्रोसेस में आप यहां तक पहुंच गए हो। अब यहाँ पे चेक करो, आपने किसको डिवाइड किया था? 7 2 9 1 को डिवाइड किया था, तो वही 7 2 9 1 जो सॉर्टेड प्रोसेस में है यहाँ पे वही मर्ज होंगे। So we will merge these two sub partitions here, okay? And what we'll do is we'll take 1 first, then we'll take 2, then we'll take 7, and then we'll take 9. So 1 2 7 9 हमें sorted array मिल गया। Now same way we will merge these two, 3 4 5 6 8 को merge करो। So from these one we'll say that okay, 3 will take first, then 4 5 में से 4 लेंगे, then we will take 5 6 and 8. So ये दोनों merge हो चुके हैं, okay?
Now we have these two sub arrays और ये दोनों सब एरे सॉर्टेड है. अब इन दोनों को मर्ज करो. सो 1 and 3, लुक ये दोनों ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, तो आप हर बार फर्स्ट वैल्यू को ही कंपेयर करोगे. 1 and 3 को कंपेयर करो. सो आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू कंसिडर 1 फर्स्ट. सो 1 हमने ले लिया, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 2. ओके, 2 and 3 को कंपेयर करो एंड विल टेक 2. ओके, 1 2 दोनों ले लिए हैं, तो द नेक्स्ट वैल्यू इज 7. 7 और 3 को कंपेयर करो, तो आप बोलोगे कि स्मॉलर वैल्यू इज 3. ओके, सो विल टेक 3 हियर. अब 3 ले लिया, तो नेक्स्ट वैल्यू 4. सो 7 and 4 ये दोनों को कंपेयर करो, विल टेक 4. सिमिलरली 7 and 5 में से 5 लोगे, 7 and 6 में से 6 लोगे, 7 और 8 कंपेयर होंगे, सो वी आर गोइंग टू टेक 7. देन द नेक्स्ट वैल्यू इज 9. 9 and 8 दोनों में से 8 लेंगे, एंड द लास्ट वन विल टेक 9. सो कंपेयर करते जाएंगे और एक एक वैल्यू हम कंसिडर करते जाएंगे. सो फाइनली जो एरे था वो हमारा सॉर्ट हो चुका है. ओके, फाइनली whatever original array we were having, we have gone through the process of division and merge, and at the end we have final array, which is sorted array. Right? So let me go one step back. Now this was the entire process demonstration. This is how it is going to work. You divide 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 divide. कब तक डिवाइड करोगे? जब तक एक सिंगल वैल्यू नहीं रहती. Single value is already sorted value, and then you are going back to merge it. Okay, so this is the entire process. अब इसी process को आप एक और example के साथ समझना चाहते हो, then let's say मैंने एक फॉर्म पूरे क्लास को फिल करने के लिए दिया. Now let us assume that physically class is going on, और मेरे पास एक physical form है, पेज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे क्लास में, एंड आई आस्क यू ऑल स्टूडेंट्स टू फिल दैट फॉर्म, एंड देन आई आस्क क्लास रिप्रेजेंटेटिव टू कलेक्ट ऑल द फॉर्म्स. तो अब क्लास में स्टूडेंट रोल नंबर वाइज तो बैठे नहीं है, वो कैसे भी बैठे थे, और क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने क्या किया, 1 by 1 रो पकड़ के सारे फॉर्म कलेक्ट भी कर लिए. सो उसको रैंडमली वो फॉर्म मिले हैं. And then I said that class counselor to class coordinator or class representative to sort those forms according to enrollment number. अब उसके पास पूरा बंच है, पेपर का एक पूरा बंच है जो sorted फॉर्म में नहीं है, मैंने उसको sort करने के लिए बोल दिया. Now assume that there were 60 students in the classroom, और उस बंदे को क्या करना है कि वो 60 फॉर्म्स जो हैं वो एनरोलमेंट नंबर से सॉर्ट करने हैं. अब वो कोई भी मेथड, कोई भी अल्गोरिदम, कोई भी प्रोसेस फॉलो कर सकता है. तो वो क्या करेगा, वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो है, कोई एक स्टूडेंट जो है, वो अपने अपने फ्रेंड्स को साथ में बिठा देगा. उसके 4 फ्रेंड थे, उसने क्या किया, उनको बिठा दिया साथ में, एंड देन उसके पास जो पेपर का बंच था, वो बंच उसने चारों फ्रेंड्स में डिवाइड कर दिया. ओके, पहले 15 पेपर उसने पहले फ्रेंड को दे दिए, दूसरे 15 पेपर्स उसने दूसरे फ्रेंड को दे दिए, एंड सो ऑन. उसने वो 60 फॉर्म्स अपने 4 फ्रेंड्स में डिवाइड किए और उनको बोल दिया कि आप ये 15 फॉर्म जो है वो सॉर्ट करके लेके आओ. अब वो कैसे करेंगे वो उनको देखना है. तो उन्होंने भी अपने फ्रेंड के पास से सीख लिया, भाई वो डिवाइड करता है अपना काम, मैं क्यों ना डिवाइड करूं अपना काम. सो वो 4 फ्रेंड ने क्या किया, वो चारों फ्रेंड ने उसके जो 2 अलग अलग फ्रेंड थे उनको भी डिवाइड कर दिया. यू फर्दर डिवाइड दिस एंड सॉर्ट इट एंड कम बैक. तो कुछ इस तरह से हुआ कि वो डिवाइड 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 करते चले गए. नाउ वंस यू हैव द सॉर्टेड लिस्ट, लेट अस कम बैक टू द फाइनल स्टेप. किसी ना किसी तरह से मान लो कि वो 4 फ्रेंड जो थे वो अपने 15 फॉर्म्स जो हैं वो सॉर्ट करके लेके आए हैं. तो अब सीआर क्या करेगा, सीआर सबके पास से
चेक करेगा कि ऑन टॉप ऑफ दैट बंच, उन्होंने ऑलरेडी सॉर्ट किया हुआ है, तो वो बंच में सबसे ऊपर जो फॉर्म पड़ा है वो सिर्फ उसी का नंबर चेक करेगा. द टॉप मोस्ट वैल्यू 1 and 3 here, remember 1 and 3 here from that entire bunch of papers, वो सिर्फ उसी को कंपेयर करेगा और जो भी एनरोलमेंट नंबर पहले आता है वो फॉर्म उठा लेगा. सो इट विल टेक ही विल टेक एनरोलमेंट नंबर 1 हियर. तो ये नीचे जो एक लिस्ट बन रहा है वो फाइनल लिस्ट है, रिजल्ट है. तो उसने कौन सा कलेक्ट कर लिया? एनरोलमेंट नंबर 1 को कलेक्ट कर लिया. अब जैसे ही वहां से 1 कलेक्ट हो चुका है तो उस बंच में नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 2. तो वो 2 को बाकी के साथ कंपेयर करेगा. सो दैट्स हाउ व्हाट दैट सीआर कैन डू. 4 बंच उसके पास जो पड़े हैं वहां से वो एक एक फॉर्म उठाते चला जाएगा इन द सॉर्टेड फॉर्म, इन द इटरेटिव मैनर. 4 बंच में से वो एक एक करके छोटा और द फर्स्ट एनरोलमेंट नंबर जो भी आता है वो एक एक करके फॉर्म लेता चला जाएगा. He will compare and then collect it. Something like that. This is the process. Now, when we are automating this process, it is going to be the recursive case, and recursive case हर बार same process follow करता है. So, अगर आप 2 पार्टीशन में डिवाइड करते हो तो फर्दर प्रोसेस भी 2 पार्टीशन में होंगी. अगर आप 4 पार्टीशन में डिवाइड करते हो तो फर्दर प्रोसेस 4 पार्टीशन में होगी, एंड सो ऑन. बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई फिजिकल स्टूडेंट, फिजिकल पर्सन नहीं बैठा है. ऑल दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी डन बाय कंप्यूटर. और कंप्यूटर को खुद को कुछ पता नहीं है, जो कोड हम लिखते हैं वही वो एग्जीक्यूट करता है. करेक्ट? जो कोड हम लिखेंगे वही कोड वो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा. सो वी हैव टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर व्हाट यू हैव टू डू. करेक्ट? तो ये प्रोसेस जो हमने पूरा अभी समझा है, हमारी समझ के हिसाब से हमें कुछ कोड लिखना पड़ेगा जिसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर पाए. सो बिफोर मूविंग टू दैट फेज कि हम कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू आर क्लियर अबाउट दिस प्रोसेस. हमने डिवाइड किया एंड देन मर्ज किया. मर्ज करते वक्त हमने वैल्यूज को कंपेयर किया और छोटी वैल्यू को कंसीडर की. Now, this process must be clear in your mind. Only in that case we can go further. So, any query or doubt till now? Any query or question at this point of time? Okay, fine. Thank you. Few of the students have responded. Hope others are also clear. So now, what we want is, we want to implement this process in a code. हमें ये पूरी प्रोसेस जो है वो एक कोड, एक प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करनी है, सो दैट कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट दैट प्रोसेस. ठीक है? तो हम ये सोचते हैं कि चलो ये ओरिजिनल लिस्ट जो था, सबसे पहला एरे जो है वो तो यूजर इनपुट में हमें दे देगा, सो हमें ये मिल जाएगा. सॉरी, ओके. सो दिस एंटायर एरे is going to be the input for you guys. अब वही एरे को आप 2 एरे में डिवाइड करते हो. सो एक एरे में से आपने 2 एरे बना दिए. अब वही 2 एरे फर्दर डिवाइड होके 4 अलग अलग एरे बन जाएंगे. वो 4 एरे फर्दर डिवाइड होके 8 एरे में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड सो ऑन. तो ये डिवीजन प्रोसेस जो है वो कब तक चलेगा हमें पहले से पता नहीं है. इट इज नॉट फिक्स्ड कि फर्दर आपको 10 एरे मिलेंगे या 50 एरे मिलेंगे या 100 एरे मिलेंगे. दैट सब एरे, those partitions
डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ओरिजिनल एरे, राइट। जो इनपुट में आपको एरे मिलता है उस एरे पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बार रिकर्सिव प्रोसेस करोगे और कितने सब पार्टीशंस आपको मिलेंगे। अगर ओरिजिनल एरे बड़ा है तो आपकी रिकर्सिव प्रोसेस लंबी चलेगी और सब पार्टीशंस ज्यादा मिलेंगे। अगर ओरिजिनल एरे छोटा है तो रिकर्सिव प्रोसेस कम चलेगी और सब पार्टीशंस कम मिलेंगे। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द इनपुट। और हमें पता नहीं है, पहले से हमें ये नहीं पता है कि यूजर इनपुट में कितने नंबर्स देने वाला है। यूजर 10 भी दे सकता है, यूजर 20 भी दे सकता है, यूजर 5 भी दे सकता है, राइट। सो वी कैन नॉट फिक्स these number of sub partitions। इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्रोग्राम के अंदर आपको ये सब पार्टीशंस याद रखने हैं तो आप ये फिजिकल एरे डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपको पहले से पता ही नहीं है कि कितने एरे चाहिए होंगे। ये एक एरे बन गया, ये दूसरा एरे बन गया, ये तीसरा एरे, ये चौथा एरे, 5 6 7 8 9 10, कितने एरे आप डिक्लेयर करोगे प्रोग्राम के अंदर ये आपको पता नहीं है। सो अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको कितने सब एरे चाहिए होंगे तो आप वो डिक्लेयर भी नहीं कर पाओगे, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम हम इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से निकालेंगे कि हम ये ओरिजिनल एरे को, हम इस ओरिजिनल एरे को फिजिकली डिवाइड नहीं करेंगे, हम इस ओरिजिनल एरे को वर्चुअली डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप ये ओरिजिनल एरे को डिवाइड करोगे तो उसके दो सब पार्टीशन की कॉपी नहीं बनाओगे आप। अगर आप कॉपी बनाते हो तो आपको फिजिकल एरे चाहिए। You are not going to divide your original array into further physical partitions. You will simply go for virtual partitions. Okay. So let us see how that works. So to understand that thing, let us go with the same process. But अब हम यहाँ पे physically उसको partition में convert नहीं करेंगे, हम उसको virtually दो partition में divide करेंगे। सो जो एरे आपका ओरिजिनल एरे है वही एरे आपके सामने है। हैव अ लुक एट द इंडेक्स वैल्यूज 0 1 2 3 पहले पार्टीशन के अंदर, दूसरे पार्टीशन के अंदर इंडेक्स वैल्यू 4 5 6 7 8। तो हमने ये वर्चुअली डिवाइड किया। नाउ एज यू कैन सी देयर आर नो न्यू कॉपी ऑफ योर पार्टीशंस। देन क्वेश्चन कम्स कि प्रोग्राम के अंदर वर्चुअल पार्टीशन कैसे होते हैं। Now, as I say, this is virtual, फिजिकली तो है नहीं, वर्चुअली है। तो मेमोरी में भी ये एक्चुअल में पार्टीशन होगा नहीं। वर्चुअली हम प्रोग्राम को बोलेंगे कि आपको ये इस तरह से कंसीडर करना है, 0 to 3 एक पार्टीशन हो गया, 4 to 8 दूसरा पार्टीशन हो गया। इस तरह से आपको याद रखना है। तो आप याद क्या रखोगे? आप सिर्फ ये याद रखोगे कि कहां से पार्टीशन किया, राइट। द मिडल वैल्यू, मैंने कहां से उसको पार्टीशन में कन्वर्ट किया, मिडल वैल्यू से। मिडल वैल्यू कैसे मिलेगी? लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाय 2 will give me the middle value. 0 plus 8 divide by 2 will give me 4. 4 से मैंने डिवाइड किया तो मुझे 4 याद रखना होगा। Now this is going to be efficient than declaring further arrays। फर्दर फिजिकल एरे अगर आप डिक्लेयर करते हो तो वो ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। उससे अच्छा ये है कि आप सिर्फ एक मिडल वैल्यू को याद रखो, पूरे एरे को नहीं। वेल, निर्मल हैज गिवन अस वन सॉल्यूशन। कैन वी यूज malloc हियर? अगर malloc comes in the last unit,
It is nothing but runtime memory allocation. अगर आपको पहले से ये नहीं पता है कि कितने एरे चाहिए, तो आप रन टाइम भी एरे डिक्लेयर कर सकते हो, and at that time you can use malloc. So yes, we can use malloc, but in that case, Nirmal, अगर हम malloc यूज करके रन टाइम सब पार्टीशंस की मेमोरी अलोकेट करेंगे, देन इट इज अ मेमोरी अलोकेशन. सो जितने पार्टीशंस होंगे उतनी मेमोरी ज्यादा अलोकेट होंगी. सो इट इज नॉट मेमोरी एफिशिएंट, राइट. उससे अच्छा ये है कि आप वर्चुअल पार्टीशन में जाओ और आप सिर्फ एक मिडिल वैल्यू को याद रखो. इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग दिस एंटायर एरे, you only remember middle value. So no element याद रखने से अच्छा है कि मैं एक सिंपल मिडिल वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू को याद रखूं. So it is memory efficient. ठीक है, तो हमने क्या याद रखा? 4 को याद रखा, तो हमें पता चला कि ओके 0 to 3 is one array, one partition. 4 to 8 is the second partition. Now what we will do is we will go and further divide these two sub partitions. कौन से partition? 0 to 3 एक partition है, हम उसको further divide करने जाएंगे. And if we further divide that thing, तो कुछ इस तरह से होगा, right? 0 plus 3 divide by 2 1.5. अगर उसको 2 consider करते हो तो 2 से हमने उसको divide किया. So we'll remember 2 here. पहले हमने 4 याद रखा था, अब हमने 2 याद रखा. लेफ्ट का साइड का जो भी पार्टीशन है 0 1, उसको आप फर्दर डिवाइड करने जाओगे तो आप 1 याद रखोगे. सो इन दिस केस यू विल से सर पहले 4 याद रखा, उसके बाद 2 याद रखा, उसके बाद 1 याद रखा. अब ये भी डिपेंड करता है कि मेरा ओरिजिनल एरे कितना बड़ा है. देन हियर कम्स द क्वेश्चन, कितनी मिडिल वैल्यूज मुझे याद रखनी होगी? हाउ मेनी मिडिल वैल्यूज आई नीड टू रिमेंबर हियर? तो वापस से वही क्वेश्चन आ गया कि कितनी मिडिल वैल्यू के लिए वेरिएबल्स डिक्लेयर करूं, क्योंकि अगर मैं ये इटरेटिव सॉल्यूशन बनाता हूं तो मुझे उतनी मिडिल वैल्यूज याद रखनी होंगी, और सारे मिडिल वैल्यूज के लिए मुझे एक 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 वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा. देन द कंफ्यूजन कम्स, कितने मिडिल वैल्यू के वेरिएबल डिक्लेयर करो, हमें नहीं पता है. अगर उसका एक एरे भी डिक्लेयर करता हूं तो एरे की साइज क्या रखूं? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. So in this case, recursion will help us. हम इसको recursion करते जाएंगे. Now let me give you one plus point of recursion here. Recursion is nothing but a function call, right? Recursion is nothing but a function call. जब भी आप function call करते हो तो पुराने function के जितने भी डेटा हैं वो एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी में स्टोर हो जाते हैं, and that PCB will go to the memory stack. अब ये समझाने के लिए let me bring you to one example here. We'll understand a simple function call now. Okay, let's say we have main, int main, and inside that we have few variables. Integer a, let's have its value 5, b is 2. Then we have some execution part, and then we call a function. Okay, we call function 1, and we pass these two parameters a and b, and that's your main function. Okay, now inside your let's say function 1, you do not return anything, so you don't have return type, you have simply void, but you have two parameters x and y, and inside that function you perform something. Let's say you calculate z equals to x plus y, you print your z, and you complete your function also. Okay,
So what happens is inside your memory, when you are executing your main, okay, when you are executing your main, inside your memory you will be having a memory for A and a memory for B, जिसके अंदर value 5 और 2 होंगी, right? Now this the total memory that has been allocated to you along with these variables and constant and heap size and all, वो क्या होता है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा व्हाट इज हीप, व्हाट इज स्टैक इनसाइड अ मेमोरी. इवन स्टैक, क्यूब, हीप, ये डेटा स्ट्रक्चर्स आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे. बट लेट अस कंसीडर दिस एंटायर मेमोरी इज अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी. इट्स अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. एक प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सारा जो भी पार्ट है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर रहता है. So this process control block is for main and this is currently being executed. Now execute करते वक्त अब इसके अंदर एक प्रोग्राम काउंटर भी रहता है जो याद रखता है कि आपने कितनी लाइंस एग्जीक्यूट कर ली हैं. Now, जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करोगे then what happens is ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा पूरा, वो उसको याद रख लेगा. And then it is going to generate a new process control block for your function 1 क्योंकि उसके separate variables हैं x and y. उसका खुद का एक program counter है because it is a separate function, right? जैसे ही वो z को calculate करेगा तो वो उसकी value भी calculate कर लेगा. Now when you are done with your function, आप currently इस PCB में थे, when you are done तो आपको वापस यहाँ पे आना है. कैसे पता चलेगा? हाउ दैट कंप्यूटर नोज कि ये फंक्शन खत्म होने के बाद मुझे वापस कहाँ जाना है. सो एट दैट टाइम वो क्या करेगा, व्हेन इट इज डन विथ फंक्शन 1, तो फंक्शन 1 की पीसीबी तो काम खत्म उसका, डिलीट दैट पीसीबी, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो फंक्शन खत्म हो गया. तो अगर मैं वापस जाना चाहता हूँ तो मैंने जो ऑलरेडी स्टोर करके रखा था मैं उसको रिकॉल करूंगा. आई एम गोइंग टू रिकॉल दिस थिंग. जब मैं इस पीसीबी को रिकॉल करूंगा तो मुझे ये ओरिजिनल मेन की पीसीबी वापस से मिल जाएगी. एंड दैट्स व्हाई यू हैव ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए एंड बी हियर. आपको पुरानी वैल्यू मिल गई, आपको पुराना प्रोग्राम काउंटर भी मिल गया. सो यू नो दैट कि आपको वापस कहाँ पे आना है. दिस इज द इंटरनल प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर इस तरह से पूरा प्रोग्राम हैंडल करता है. ओके, सो नाउ लेट्स कम बैक टू आवर एग्जांपल. लेट अस कम बैक टू आवर एग्जांपल. जब फंक्शन खत्म होगा तब उसकी पीसीबी डिलीट होगी. लेकिन अगर फंक्शन खत्म नहीं हुआ है, उसने दूसरा फंक्शन कॉल कर लिया, तो उसकी पीसीबी जो है कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर हो जाती है. सो योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज गोइंग टू रिमेंबर दैट ओल्ड वैल्यूज. 5 और 2 जो था उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहीं ना कहीं याद रख लिया. एंड वी आर गोइंग टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस थिंग. हम क्या करेंगे, हम इसका बेनिफिट लेंगे. जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद पुरानी वैल्यूज को याद रखता है, हमें याद रखने की जरूरत नहीं. एंड व्हेन वी कॉल अ फंक्शन, रिकर्जन क्या है, फंक्शन कॉल है. इसका मतलब ये हो गया कि जब भी मैं रिकर्जन करूंगा तो पुराने फंक्शन कॉल की सारी वैल्यू जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम याद रख लेगा, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है. So I just have to calculate that middle value. Let me go back to our slides. Sorry. Okay. Let's go back here. मुझे सिर्फ 4, 2, 1 कैलकुलेट करके एक वेरिएबल में रखना है.
अब वो वेरिएबल जो है वो पीसीबी के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम खुद याद रख लेगा। 4 को कैलकुलेट करके एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा और जब मैं फर्दर रिकर्जन करने जाऊंगा तो ये 4 पीसीबी के थ्रू कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, वो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। व्हेन आई कम बैक फ्रॉम द रिकर्जन प्रोसेस तो पुरानी पीसीबी वापस आएगी और मुझे ये 4 भी वापस मिल जाएगा। ओके, so that is the plus point of going for recursion here. So पहले एक पॉइंट था एडवांटेज ऑफ रिकर्जन कि ज्यादा फंक्शन कॉल नहीं करने हैं, मेमोरी में भी हमें बेनिफिट मिलता है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी डू नॉट हैव टू गो फॉर मोर कॉम्प्लेक्स कोड रिटन यूजिंग इटरेशंस। उससे तो अच्छा है रिकर्जन से ये काम आसानी से हो जाता है। ठीक है, सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डिवीजन करने की जो प्रोसेस है वो हम रिकर्जन से करेंगे, सो दैट मिडल पॉइंट automatically will be remembered. So how to divide it? Let us focus on that code now. हम उस कोड पे फोकस करते हैं। So what we need is we need array. हमें original array चाहिए। Forget about this temporary array right now. बाद में आपको बोलूंगा कि हमें temporary array क्यों चाहिए। So we need original array and we need starting point and the ending point. अब ये temporary array आगे जाके हमें चाहिए, यूजर कोई टेम्पररी एरे हमें नहीं देगा। सो विल कंसिडर हाउ टू टेक दिस टेम्पररी एरे एंड व्हाई वी नीड दिस टेम्पररी एरे लेटर ऑन। फॉर नाउ what you need to focus is we need original array, we need its starting position and we need the ending position of that partition, that array. अब start और end अगर आपके पास है तो आप middle point आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। start plus end divide by 2 आपको मिड पॉइंट दे देगा और आप ये कैलकुलेशन एक वेरिएबल में याद रख लो। नाउ वंस यू हैव योर मिड पॉइंट तो आपको ये पता चल गया कि स्टार्ट से लेके मिड तक मेरा पहला पार्टीशन है एंड मिड प्लस 1 से लेके एंड तक मेरा दूसरा पार्टीशन है। इन अदर वर्ड्स यू कैन ऑल्सो से दैट स्टार्ट से लेके मिड -1 तक पहला पार्टीशन है और मिड से लेके एंड तक दूसरा पार्टीशन है। सो दिस डिपेंड्स ऑन यू, आपको मिड को कहाँ पे रखना है, लेफ्ट साइड रखना है या राइट साइड रखना है। सो इट इज समथिंग लाइक स्टार्ट से लेके मिड तक मेरा पहला पार्टीशन है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट अप टू मिड ये मेरा पहला पार्टीशन हो गया एंड देन मिड प्लस 1 से लेके एंड तक मेरा दूसरा पार्टीशन है। सो ये वर्चुअली मैंने दो पार्टीशन कंसीडर किए। अब उन्हीं दो पार्टीशन को मैं फर्दर डिवाइड करने जाऊंगा तो मैं यहां से रिकर्जन करूंगा। सो अगर मेरे फंक्शन का नाम था msort तो मैं यहां से फिर से msort कॉल करूंगा। ओके, सो दिस बिकम्स रिकर्जन, दिस इज योर रिकर्जन। अब रिकर्जन करते हो तो सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास करने होंगे। ओरिजिनल एरे पास करना है तो ओरिजिनल एरे पास करो, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर टेम्पररी एरे चाहिए तो टेम्पररी पास करो। तीसरा पैरामीटर आपको स्टार्ट पॉइंट चाहिए तो पहले पार्टीशन में आपका स्टार्ट है स्टार्ट, लेकिन दूसरे पार्टीशन में आपका स्टार्ट हो जाएगा मिड प्लस 1। सो अकॉर्डिंगली हमने वो पैरामीटर पास किया। एंड लास्ट पैरामीटर है एंड, तो पहले पार्टीशन का एंड है मिड एक्सक्यूज मी, और दूसरे पार्टीशन का एंड एंड। सो दोनों पार्टीशन को रिकर्सिवली हम फिर से डिवाइड करने जाते हैं। सो दिस इज योर फंक्शन कॉल। जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे तो आपका मिड जो है वो पीसीबी के थ्रू कहीं ना कहीं स्टैक के अंदर स्टोर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम वो स्टोर कर लेगी। सो आपने एक ही मिड यहाँ पे कैलकुलेट किया लेकिन वो इटरेटिवली कहीं ना कहीं स्टोर हो गया। सो दैट्स हाउ दिस पार्टीशन प्रोसेस वर्क्स। जो हमने अभी पार्टीशन करके देखा
रिकर्जन से इतने कोड में आपके पार्टीशंस हो जाएंगे. बट व्हेन वी गो फॉर रिकर्जन, नेवर फॉरगेट अबाउट टू केसेस, रिकर्सिव केस एंड बेस केस. अगर बेस केस याद नहीं रखते हो तो ये इनफाइनाइट हो जाता है. सो फॉर दैट नाउ वी नीड टू थिंक अबाउट बेस केस. अब बेस केस आपको पता है, अगर सिंगल वैल्यू है तो फर्दर रिकर्जन नहीं करना है. सो हाउ कैन यू डिसाइड इट? वेरी सिंपल. स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन आपके पास है. अगर स्टार्ट इज लेस देन एंड, स्टार्ट पोजीशन इज लेस देन एंड, तो उसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक से ज्यादा वैल्यू है, एंड इन दैट केस यू आर गोइंग टू डू द रिकर्जन. एल्स आपका बेस हो जाएगा, वहां पे आपको कुछ नहीं करना है. राइट? सो यहाँ पे मैंने बेस केस डिफाइन तो किया लेकिन एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं है. रिकर्सिव केस को कंडीशन में डाल दिया मैंने. ठीक है? सो जब तक आपके पास एक से ज्यादा वैल्यू है आप ये रिकर्जन करते जाओगे. व्हेन यू कम बैक फ्रॉम रिकर्जन, जब आप लेफ्ट को डिवाइड करके वापस आ गए, जब आप राइट को डिवाइड करके वापस आ गए हो, देन आपको ये लेफ्ट और राइट दोनों को मर्ज करना है. सो आफ्टर वी आर डन विथ ऑल द पार्टीशंस, we come back from left, we come back from right, then we are going to merge those left and right partitions. So ये दोनों recursion हो जाने के बाद हम merge करेंगे, and at the time of merging process हम original array, हम temporary array, and then हम सारे partitions भेजेंगे. start से लेके mid तक पहला partition और mid plus 1 से लेके end तक दूसरा partition. या तो फिर आप ये बोल सकते हो कि start से लेके mid -1 तक पहला partition और mid से लेके एंड तक का दूसरा पार्टीशन. सो ये तीन प्लेस, ये तीन पॉइंटर, ये तीन इंडेक्स वैल्यू जो है वो आपको दो पार्टीशन दे देगी. एंड देन वी आर गोइंग टू मर्ज. अब मर्ज के अंदर जो हमें कंपैरिजन करना है वो सारा प्रोसेस हो जाएगा. सो लेटर ऑन वी विल सी व्हाट इज मर्ज. व्हेन यू गो टू मर्ज यू विल रिक्वायर टेम्पररी एरे, क्योंकि वहां पे हम क्या करते हैं, दो पार्टीशन के अंदर से कंपेयर करके एक एक वैल्यू कंसीडर करेंगे. तो जो वैल्यू को हम कंसीडर कर रहे हैं उसको एक टेम्पररी एरे के अंदर स्टोर करना पड़ेगा हमें. राइट? दो वैल्यू को कंपेयर करके जो वैल्यू छोटी है उस वैल्यू को कंसीडर करने के लिए उस वैल्यू को हम एक टेम्पररी एरे में कॉपी करेंगे. दैट्स व्हाई वी विल रिक्वायर दिस टेम्पररी एरे लेटर ऑन इन मर्ज प्रोसेस. तो उसी वजह से हमने ये टेम्पररी एरे ले लिया. अब लुक, टेम्पररी एरे यूजर तो देगा नहीं हमें, तो यूजर क्या देगा? यूजर तो सिर्फ ओरिजिनल एरे और उसकी साइज दे देगा आपको. सो एंड यूजर इज गोइंग टू कॉल मर्ज सॉर्ट फंक्शन. अब उसने आपको ओरिजिनल एरे दिया और एरे की साइज दे दी. एरे और उसकी साइज के हिसाब से हमें क्या चाहिए? हमें एरे, एक टेम्पररी एरे, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट, उसका एंडिंग पॉइंट चाहिए. सो टू डू दिस इन दिस फंक्शन, मर्ज सॉर्ट फंक्शन, सबसे पहले तो हम जो साइज यूजर ने दी है उसी साइज का एक टेम्पररी एरे बनाएंगे, एंड देन वी विल कॉल दिस एम सॉर्ट फंक्शन, जहां पे आप ओरिजिनल एरे भेजोगे, अपना टेम्पररी एरे भेजोगे. इनिशियल वैल्यू फॉर एरे विल ऑलवेज बी गोइंग टू बी द जीरो. जीरो पहला एलिमेंट होता है और लास्ट एलिमेंट साइज -1 होता है. सो दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट. तो यहाँ से हमने एम सॉर्ट कॉल किया, डिवाइड किया, मर्ज किया. जैसे ही वापस आएंगे हमारा एरे सॉर्ट हो गया होगा. वंस वी आर डन विथ सॉर्टिंग प्रोसेस, हमें टेम्पररी की कोई ज़रूरत नहीं है. सो आफ्टर दिस एम सॉर्ट वी विल डिलीट दैट टेम्पररी ऑल्सो. ओके, वी विल delete that temporary array also, and then we are done with the entire process. तो ये कोड हो गया सिर्फ डिवीजन प्रोसेस का. मर्ज का कोड अभी भी बाकी है. राइट? वी हैवंट मर्ज्ड दोज पार्टीशंस. हमने सिर्फ अभी तो रिकर्जन करके डिवाइड कैसे करते हैं वो सीख लिया. नाउ दीपक इज आस्किंग, कैन वी यूज for loop if else? Well, you can use it.
लेकिन दीपक, इतनी देर से मैं यही समझा रहा था कि इटरेशन के बजाय रिकर्जन आप यहाँ पे आसानी से कर पाओगे, क्योंकि रिकर्जन इज नॉट अ फंक्शन, इज अ फंक्शन कॉल। और जब आप फंक्शन कॉल करते हो तो आपका सारा डेटा मेमोरी में खुद ब खुद स्टोर हो जाता है। तो ये मिडिल पॉइंट जो आप कैलकुलेट कर रहे थे, वो पुराने मिडिल पॉइंट्स भी मेमोरी में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ रिकर्जन। अगर आपने रिकर्जन नहीं किया, अगर आपने लूप लिखा है, तो आप जितनी बार डिवाइड करते हो उतने मिडिल पॉइंट आपको याद रखने होंगे। तो आप कितने मिड डिक्लेयर करोगे? मिड 1, मिड 2, मिड 3, मिड 4, मिड 5, मिड 6, या तो फिर मिड एरे ले लो। तो एरे की साइज क्या होगी? 10, 50, 100। दैट डिपेंड्स ऑन यू। एज अ डेवलपर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं कितने मिड लूँ, एंड दैट्स नॉट फिजिबल। अगर फोर लूप लिखते हो, फोर लूप के अंदर मिड कैलकुलेट करते हो, तो पुराने मिड्स याद कौन रखेगा? एंड दैट विल बिकम कॉम्प्लेक्स फॉर यू। उसी वजह से हम लूप छोड़ के रिकर्जन में आ गए। और रिकर्जन का ये प्लस पॉइंट है, इट्स अ फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल करेंगे तो पुराने मिड ऑपरेटिंग सिस्टम याद रख लेगा, हमें याद रखने की जरूरत नहीं। एंड व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द फंक्शन, फंक्शन से वापस आएंगे तो वो पुरानी वैल्यूज ऑपरेटिंग सिस्टम हमें वापस दे देगा। एंड दैट्स हाउ ऑल दोज मिड, अब ये मिड जो है वो लोकल वेरिएबल है, जितने फंक्शन कॉल करेंगे उतने मिड जनरेट होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करेगा उसे, एंड इट इज गोइंग टू रिमेंबर इट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ partitioning your array. Okay, so we'll stop here. हमने क्या देखा? How, let me go back, how merge sort works. पहले तो हमने ये समझा कि merge sort काम कैसे करता है। अब फिजिकली आपको merge sort अप्लाई करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो, the way you look at your slide right now, इस तरह से आप फिजिकली कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोड लिखने जाते हो तो इतने सब एरे, इतने पार्टीशंस आप फिजिकली डिक्लेयर नहीं करोगे। इट इज नॉट feasible and it is not possible because it depends on the input size. तो 5, 15 या 20 एरे चाहिए वो आपको पता भी नहीं है। अगर आप रन टाइम डिक्लेयर करने जाओगे फिर भी वो ज्यादा मेमोरी खा जाएगा। सो इट इज नॉट feasible। तो इसका सॉल्यूशन हमने ये निकाला कि हम उसको वर्चुअली डिवाइड करेंगे, फिजिकली डिवाइड नहीं करेंगे, हम वर्चुअली। वर्चुअल डिवाइड करने के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपने कहाँ से डिवाइड किया। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ से डिवाइड किया। तो आप तो आप समझ सकते हो कि लेफ्ट साइड एक पार्टीशन, राइट साइड दूसरा पार्टीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, ठीक है मैं याद रख लूंगा मिडिल पॉइंट, लेकिन कितने मिडिल पॉइंट्स? तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने रिकर्जन ले लिया। यूजिंग रिकर्जन वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम टू रिमेंबर ऑल द मिड पॉइंट्स, एंड सो दैट वी कम टू दिस सॉल्यूशन। इस तरह से मैं डिवाइड कर पाऊंगा। Now, in the next lecture, tomorrow's lecture, what we will do is we will focus on how to merge those partitions. Okay? How we can merge these partitions. 7 और 2 को मैंने divide किया था, तो 7 cannot be further divided, मैं वापस आऊंगा। 2 cannot be further divided, तो मैं वापस आऊंगा। मतलब लेफ्ट से वापस आ गया, राइट से वापस आ गया। अब लेफ्ट राइट दोनों को मर्ज करना है। So in tomorrow's lecture, we will focus on how we can merge these two partitions. So merging process पहले समझेंगे और उसके बाद merge function का code define करेंगे in tomorrow's lecture. So that's all from my side today. And even time has come to complete. We need to complete this session here. So thank you everyone for being part of this session here. I'll upload this lecture by 12 or 1.
what I suggest is you go through this lecture one more time. Try to understand how recursion helps us and how we are virtually dividing our array into number of partitions. तो कल आपको merge process आसानी से समझ में आ जाएगा. Well, thank you everyone, and see you in the next lecture then.